Hello everybody. Today I will discuss budgetary deficits. It is the part 3 of the chapter budget and the economy, and it is very useful for class 12 students. My friends, please like my video and subscribe me and comment me. My channel is ASIT SIR ECOMANIA. So I do not want to waste more time, but just I approach to you. Watch my video till the end. So what is budgetary deficit? It means it refers to a situation when budgetary expenditure of the government is greater than the budgetary receipts during a fiscal year. When budgetary expenditure, it is revenue expenditure and capital expenditure. The total budgetary expenditure of the government, when it is more than the budgetary receipts. Budgetary receipts, it is revenue receipts and capital receipts. Already I have discussed in my previous video. So basically जो budgetary deficit होता है, जो budgetary expenditure budgetary receipts से ज़्यादा होता है तब deficit होता है. It is budgetary deficit. So simply same thing I have written. It refers to a situation when budget expenditures of the government are greater than the budget during a fiscal year. So budget expenditures, it is revenue expenditures and capital expenditures. Budget receipts, it is revenue receipts and capital receipts. So total budgetary expenditure of the government is greater than the budget receipts of the government, then deficit is arising. And basically it is measured during a fiscal year, and it is estimated one. It is not actual one. At the end, suppose for this year budget 2020-21, at the end of this year, then government again it would be revised. Okay, the deficit would be revised. Then again this revised would be taken for the next year estimation. Clear? So alternatively, it is the excess of total expenditure. It is revenue expenditure and capital expenditure over and above the total receipts. Revenue receipts and capital receipts of the government during a fiscal year. It is also called government deficit. Clear? So if you go through my previous video, it means budget part 1 and budget part 2, then you can get so many informations about different budgetary expenditure and different budgetary receipts. So types of budget deficit, 3 types of budget deficit are there. One is revenue deficit, second one fiscal deficit, third one primary deficit. So first I will discuss revenue deficit. So revenue deficit, how to define revenue deficit? तो revenue deficit को हम कैसे define करेंगे? Now it is the excess of revenue expenditure over revenue receipts. थोड़ा revenue expenditure के ऊपर बता रहा हूँ. This expenditure incurred by the government to pay salary, pension, interest payment, grants to backward states. Clear? Then expenditure for tax collection, old age pension, scholarship. Clear? So basically revenue expenditure, it is generally made by the government for normal functioning of the government departments. Already I have discussed in my previous video. Over revenue receipts. Revenue receipts, actually sources of revenue receipts are tax revenue and non-tax revenue. Tax revenue, it is direct tax and indirect tax. And non-tax revenue, it is fees, fine, penalty, ASIT for features, special assessment, gifts and grants, profits of PSUs, interest received by the union government from the state governments and union territories. Already I have discussed. So when revenue deficit is arised, now when excess of total expenditure of the government over revenue receipts. So revenue deficit is only related to रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट. सो हमको यहाँ पर जो रेवेन्यू डेफिसिट है, यहाँ पर याद रखना है, जब टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू रिसिप्ट से ज़्यादा होता है, और यहाँ पर जो ये एस्टिमेटेड है, फिर इसको रिवाइज किया जाएगा एट द एंड ऑफ द फिजिकल ईयर, ये रिवाइज किया जाएगा. देन जो रिवाइज एस्टिमेट होगा, जो रिवाइज रेवेन्यू डेफिसिट होगा, उसको फिर लिया जाएगा नेक्स्ट ईयर बजट जब पेश होगा, उस समय एस्टिमेशन के लिए कंपेयर किया जाएगा. तो जो रेवेन्यू डेफिसिट परसेंटेज में होता है, जो रेवेन्यू डेफिसिट एक्चुअली मनी में आता है, उसको
फिर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। तो कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे हम देखेंगे। इट मीन्स रेवेन्यू डेफिसिट इज हाउ मच परसेंटेज ऑफ जीडीपी। सपोज फॉर एग्जाम्पल रेवेन्यू डेफिसिट इज 3%। 3% मीन्स डेफिसिट इज 3% ऑफ जीडीपी ऑफ द कंट्री। क्लियर? सो कंफ्यूजन नहीं होना है। So when revenue deficit is arised, it is arised when excess of total revenue expenditure over revenue receipts. The same formula I have written here, revenue deficit is equal to revenue expenditure minus revenue receipts. और यहाँ पर जो हम लेंगे वो estimated होगा, वो actual नहीं होगा. It is not actual one, it is estimated one. Then again at the end of the year, suppose in case of 2020-21, at the end of the year, again it would be revised. Then revised revenue deficit would be taken for estimation of the next year budget. Clear? And always revenue deficit is in percentage means it is revenue deficit. It is in percentage means it is percentage of what? GDP. Clear? Suppose revenue deficit is 3%. 3% means what? It is 3% of total GDP. Okay, so implications, how in case of implications of revenue deficit, just we see, it means just effects of revenue deficit. Okay, effects of revenue deficit, just we discuss it. It means what type of conclusions drawn from the revenue deficit. So revenue deficit indicates that the government does not have sufficient revenue for the normal functioning of the government departments. जो रेवेन्यू डेफिसिट से पता चलता है कि गवर्नमेंट के पास जो रेवेन्यू कलेक्शन है और जो रेवेन्यू रिसिप्ट गवर्नमेंट का है वो सफिशिएंट नहीं है फॉर फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। बेसिकली फॉर फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स डेफिनेटली गवर्नमेंट incur expenditure on salaries and pension. It is very important one. Okay, so it means when revenue deficit is arised, then in this case just we detect that government does not have sufficient revenue for the normal functioning of the government departments. ये एक फर्स्ट implication है। नेक्स्ट वन, गवर्नमेंट यूजिंग द सेविंग ऑफ अदर सेक्टर्स टू मीट दिस डेफिसिट। गवर्नमेंट क्या करता है ना, अदर सेक्टर्स का सेविंग को यहाँ पर यूज करके ये डेफिसिट को मीट करता है, जो रेवेन्यू डेफिसिट को मीट करता है। जो रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, फिर और एक बार बता रहा हूँ वो केस क्या है ना, जो व्हेन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज मोर देन रेवेन्यू रिसिप्ट्स। गवर्नमेंट जितना रेवेन्यू रिसिप्ट कलेक्ट करता है उससे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है। क्लियर? So government using of savings of other sectors of the economy to meet this deficit. So इस यहाँ पर मैं बोल देता हूँ जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स होता है वो टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू से आता है। टैक्स रेवेन्यू में डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, वेल्थ टैक्स, डेथ ड्यूटी, ये सब डिस्कस कर चुका था। और जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है जीएसटी। नॉन टैक्स रेवेन्यू में जो गवर्नमेंट रेवेन्यू रिसिप्ट करता है वो फीस, फाइन, पेनल्टी, प्रॉफिट्स ऑफ पीएसयूज, एससीट, फॉरफीचर्स, ये सब मैं डिस्कस कर चुका हूँ। और जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है जब गवर्नमेंट सैलरी, पेंशन, इंटरेस्ट पेमेंट ऑन ईयरलियर लोन्स, सब्सिडीज, प्रोविजन ऑफ सब्सिडीज टू द स्मॉल फार्मर्स एंड स्मॉल प्रोड्यूसर्स, देन प्रोविजन ऑफ ग्रांट्स टू नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स एंड अदर बैकवर्ड स्टेट्स, और एक्सपेंडिचर फॉर टैक्स कलेक्शन, देन फॉर इट मीन्स पेमेंट ऑफ ओल्ड एज पेंशन, स्कॉलरशिप, expenditure incurred by the government for poverty alleviation programs, expenditure incurred by the government for employment generation programs, you know मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, उसके ऊपर जो गवर्नमेंट खर्च करता है, ये सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू रिसिप्ट से ज्यादा होता है, जब डेफिसिट गवर्नमेंट यूज ऑफ सेविंग्स ऑफ अदर सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी टू मीट दिस डेफिसिट, देन रेवेन्यू डेफिसिट फोर्सेस द गवर्नमेंट टू डिसइन्वेस्ट और कवर द शॉर्टेज बाय बोरोइंग। अल्टीमेटली गवर्नमेंट क्या करता है, इट मीन्स व्हेन द रेवेन्यू डेफिसिट इज अराइज्ड देन द गवर्नमेंट मे गो फॉर डिसइन्वेस्टमेंट। इट मीन्स गवर्नमेंट इट मीन्स सेल ऑफ पार्ट और होल ऑफ द शेयर्स ऑफ सिलेक्टेड पब्लिक सेक्टर एंड अंडरटेकिंग्स टू द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स। गवर्नमेंट क्या करता है, ये भी कर सकता है गवर्नमेंट के पास एक ऑप्शन है। जब ये रेवेन्यू डेफिसिट होता है गवर्नमेंट क्या करता है ना, जो सिलेक्टेड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से उसका पार्ट और होल शेयर्स को प्राइवेट इंटरप्रेन्योर्स को बेचता है, और जो फंड रेज होता है वो इस डेफिसिट को उसी फंड से मीट करता है। और क्या करता है ना, ये जो शॉर्टेज है, जो डेफिसिट आता है, गवर्नमेंट इसको बोरोइंग से मीट करता है। ठीक है, गवर्नमेंट बोरो फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, बोरो फ्रॉम आरबीआई, बोरो फ्रॉम पब्लिक, बोरो फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट्स, बोरो फ्रॉम फॉरेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस।
सो इट मीन्स ये पता चलता है कि ये जो रिसिप्ट, जो डिसइन्वेस्टमेंट है और बोरोइंग्स है, दीज आर द पार्ट्स ऑफ कैपिटल रिसिप्ट. ओके, ये सब कैपिटल रिसिप्ट है. इट मीन्स गवर्नमेंट हैज टू मेक अप दिस डेफिसिट फ्रॉम कैपिटल रिसिप्ट्स. ओके, जो डिसइन्वेस्टमेंट है, इट इज रिडक्शन ऑफ असेट्स. तो ये कैपिटल रिसिप्ट. बोरोइंग, क्रिएशन ऑफ लाइबिलिटीज. ओके, कैपिटल रिसिप्ट है. तो गवर्नमेंट, इट मीन्स अल्टीमेटली, इट मीन्स to make up this deficit from capital receipts like disinvestment or borrowings. Use of capital receipts like borrowing or disinvestment leads to an inflationary situation if extravagant expenditure is not controlled by the government. When the government borrow funds to meet this deficit, then in this case inflationary situation might be arised in the economy. हम जानते हैं जब गवर्नमेंट बोरो करेगा ये डेफिसिट को मीट करने के लिए, तब क्या होता है ना, जब गवर्नमेंट बोरो करके उसको खर्च करता है तब लोगों के हाथ पैसा जाता है. ड्यू टू दिस मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी इंक्रीजेस, बिकॉज मनी सप्लाई मीन्स मनी हेल्ड बाय द पब्लिक एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. सो जब मनी सप्लाई बढ़ता है तब एग्रीगेट डिमांड बढ़ता है, एग्रीगेट प्राइस बढ़ता है और उससे इन्फ्लेशनरी सिचुएशन क्रिएट होता है. तो ये संभावना होता है. तो बेसिकली व्हेन गवर्नमेंट यूज ऑफ कैपिटल रिसिप्ट्स लाइक बोरोइंग और डिसइन्वेस्टमेंट, देन इन्फ्लेशनरी सिचुएशन में भी अराइज्ड इन द इकोनॉमी. क्योंकि ऑब्वियसली जब बोरोइंग और डिसइन्वेस्टमेंट में जो गवर्नमेंट जो फंड रेज करता है और उसको खर्च करता है, तब ये क्या होता है ना, जो इट मीन्स देन अगेन व्हेन द गवर्नमेंट इनकर एक्सपेंडिचर, देन द मनी गोज टू द पब्लिक. ड्यू टू दिस मनी सप्लाई इंक्रीजेस, देन एग्रीगेट डिमांड increases, then price increases. So due to this inflationary situation generated in the economy, and we know that at the time of inflationary situation, poor people are adversely affected. तो जो हायर बोरोइंग, सपोज गवर्नमेंट बोरो करके ये डेफिसिट को मीट करता है, इट मीन्स व्हेन द गवर्नमेंट बोरो फंड्स टू मीट दिस डेफिसिट, देन डेफिनेटली इट वुड क्रिएट फ्यूचर बर्डन. In future, then definitely government is obliged to pay back the loan with interest in future. So in future, government would impose more rate of tax on the people. So due to this, actually, it create burden for the people. Okay, in future. So higher borrowing would increase the future burden to repay the loan amount and interest payment. तो फ्यूचर में गवर्नमेंट लोन अमाउंट और इंटरेस्ट को पे करेगा, तो उस समय गवर्नमेंट क्या करेगा ना, लोगों के ऊपर ज़्यादा टैक्स लगाएगा. तो ये क्या होता है, फाइनेंशियल बर्डन होगा लोगों के लिए फ्यूचर में. ये हाई रेवेन्यू डेफिसिट गिव्स ए वार्निंग सिग्नल टू द गवर्नमेंट. ये एक वार्निंग सिग्नल होता है. क्या है ना, गवर्नमेंट को वार्निंग सिग्नल होता है कि आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कम करो और रेवेन्यू रिसिप्ट को बढ़ाओ. इट इज ए वार्निंग सिग्नल फॉर द गवर्नमेंट. इट अलर्ट द गवर्नमेंट दैट आइदर कर्व रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और टू इंक्रीज रेवेन्यू रिसिप्ट्स. कोई भी करो, आइदर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कम करो और रेवेन्यू रिसिप्ट्स को बढ़ाओ. ये एक अलर्ट होता है जब रेवेन्यू डेफिसिट होता है. तो ये सब इंप्लीकेशंस होता है. इंप्लीकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आता है. सपोज क्वेश्चन इज कमिंग, व्हाट इज रेवेन्यू डेफिसिट, एक्सप्लेन इट्स इंप्लीकेशंस. क्लियर. देन रिमेडियल मेजर्स क्या है, हाउ टू रिड्यूस रेवेन्यू डेफिसिट, व्हाट मेजर्स शुड बी टेकन टू रिड्यूस रेवेन्यू डेफिसिट. क्या क्या मेजर करना है जो रेवेन्यू डेफिसिट को कम करने के लिए. फर्स्ट वेरी कॉमन है, मेजर्स टू रिड्यूस पब्लिक एक्सपेंडिचर. गवर्नमेंट को पब्लिक एक्सपेंडिचर को कम करना है. ओके, मेजर्स टू रिड्यूस पब्लिक एक्सपेंडिचर, इट मीन्स बेसिकली गवर्नमेंट चेक द वेस्टफुल एक्सपेंडिचर, एक्स्ट्रावागेंट एक्सपेंडिचर, जो अननेसेसरी और अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर को गवर्नमेंट को चेक करना चाहिए. जैसे एक एग्जाम्पल में दे दिया सब्सिडीज. तो सब्सिडीज एक अननेसेसरी एक्सपेंडिचर है. सब्सिडीज इज इकोनॉमिकल असिस्टेंस. इकोनॉमिकल असिस्टेंस प्रोवाइड बाय द गवर्नमेंट टू द फार्मर्स एंड स्मॉल बिजनेस एंटरप्राइजेस टू प्रमोट द प्रोडक्शन. ये गवर्नमेंट का एक अननेसेसरी एक्सपेंडिचर है, एक अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर है, उसको कम करना चाहिए. ये एक है. नेक्स्ट वन, मेजर्स टू इंक्रीज रेवेन्यू. अदर साइड में यहाँ पर जैसे पब्लिक एक्सपेंडिचर को कम किया गया. ओके, और भी बहुत जगह पब्लिक एक्सपेंडिचर को, जैसे मनरेगा में गवर्नमेंट कम खर्च करेगा, पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स में कम खर्च करेगा. ओके, ऐसे गवर्नमेंट क्या करेगा ना, जो पब्लिक एक्सपेंडिचर में कम करेगा, ठीक है, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम होगा. क्लियर. तो बेसिकली गवर्नमेंट रिड्यूस एक्सपेंडिचर ऑन सब्सिडीज, गवर्नमेंट रिड्यूस एक्सपेंडिचर ऑन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स, गवर्नमेंट रिड्यूस एक्सपेंडिचर ऑन पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स. ओके, तो इस तरीके से गवर्नमेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कम करेगा. अदर साइड में रेवेन्यू रिसिप्ट को बढ़ा सकता है.
तो कोई भी आइदर रिड्यूस पब्लिक एक्सपेंडिचर और इंक्रीज द रेवेन्यू रिसिप्ट्स। तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स को बढ़ाने के लिए इंक्रीज इन एग्जिस्टिंग टैक्स रेट, जो टैक्स रेट है, एग्जिस्टिंग टैक्स रेट है, उसको गवर्नमेंट बढ़ाएगा तो गवर्नमेंट को ज़्यादा कलेक्शन होगा। तो गवर्नमेंट मे हाइक एग्जिस्टिंग टैक्स रेट टू कलेक्ट मोर रेवेन्यू। इंक्रीजिंग द टैक्स ऑन पीपुल इन हायर अर्निंग स्लैब्स। तो हायर इनकम में एक्चुअली हायर टैक्स स्लैब में गवर्नमेंट ज़्यादा टैक्स इंपोज करेगा। हायर अर्निंग स्लैब्स में जैसे बताया अभी जो टैक्स स्लैब है, जैसे अप टू 5 लाख जो 5% है, 5 to 7.5 लाख 10% है, 7.5 to 10 लाख वो 15% है, 10 to 12.5 लाख 20% है। तो ये बढ़ाता है। तो इसमें इंक्रीजिंग टैक्स ऑन पीपुल इन हायर अर्निंग स्लैब्स, जो जिनका हायर अर्निंग स्लैब्स है उसके ऊपर ज़्यादा टैक्स इम्पोज करना है गवर्नमेंट को, ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए। इम्पोज न्यू टाइप ऑफ टैक्सेस, गवर्नमेंट कोई न्यू टैक्स ला सकता है, ओके, उससे भी गवर्नमेंट को ज़्यादा रेवेन्यू प्राप्त होगा। इंक्रीज इन नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स, नॉन टैक्स रेवेन्यू में गवर्नमेंट फीस को बढ़ा सकता है। जैसे जो गवर्नमेंट मिनिमम फीस चार्ज करता है, मिनिमम फीस चार्ज बाय द गवर्नमेंट फॉर रेंडरिंग सर्विसेज टू द पीपल, वो फीस को चार्ज कर सकता है। जैसे एजुकेशनल फीस है, मेडिकल फीस है, चाहे रजिस्ट्रेशन फीस है, चाहे पासपोर्ट फीस है, तो ये सब फीस जो होता है, जो मिनिमम फीस होता है, उसको बढ़ा सकता है। पेनाल्टी को बढ़ा सकता है। जैसे पेनाल्टी सपोज दोज लॉ ब्रेकर्स बेसिकली ब्रेक अप द रूल्स एंड रेगुलेशंस, the government impose more penalty on them. Also government try to increase the profits of public sector undertakings. गवर्नमेंट ये ट्राई कर सकता है जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को, जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को गवर्नमेंट मैनेज करता है, उनका प्रॉफिट को बढ़ा सकता है। तो इस तरीके से नॉन टैक्स रेवेन्यू को गवर्नमेंट बढ़ा सकता है। जैसे लाइसेंस फी को भी बढ़ा सकता है। तो ये इससे क्या होता है ना, नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स बढ़ता है। नेक्स्ट वन, एफर्ट्स शुड बी मेड टू इंक्रीज इनकम फ्रॉम पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। जो गवर्नमेंट का जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है, जैसे सेल है, ओएनजीसी है, गेल है, आईओसी है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, भारत एल्यूमिनियम कंपनी, ये जो सब पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है, उनका गवर्नमेंट आई मीन पुट मोर एफर्ट टू इंक्रीज द प्रॉफिट और टू इंक्रीज द इनकम ऑफ दिस टाइप ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। सो इसके हिसाब से गवर्नमेंट को ज़्यादा रेवेन्यू रिसिप्ट प्राप्त होगा। और टैक्स इवेजन शुड बी कंट्रोल्ड। कभी क्या है, अभी जैसे सभी आधार लिंक हो गया और पैन कार्ड का लिंक हो गया, हम इनकम को छुपा नहीं सकते। वी डू नॉट हाइड अवर इनकम। सो इन पास्ट डेज एक्चुअली पीपल हाइड देयर इनकम, बट नाउ इट इज एक्चुअली it means already all the people, all the taxpayers, they are having Aadhaar link and they are having PAN card link, so they cannot hide their income. So tax evasion should be controlled. जो हम it means हम कम इनकम दिखाते हैं गवर्नमेंट को, sometimes actually the people knowingly they want to give, they want to show the less income to the government. They hide some income. Due to this actually they pay less tax. Okay, so then day by day government it means bring some new rules so that people and business personnel, basically entrepreneurs, they cannot hide their income. तो इससे भी रेवेन्यू रिसिप्ट बढ़ सकता है। तो ये सब मेजर्स है, डिफरेंट मेजर्स, रिमेडियल मेजर्स टू रिड्यूस रेवेन्यू डेफिसिट। क्लियर? सो माय फ्रेंड्स, इट मीन्स ये जो बजट का पार्ट 3 जो बजटरी डेफिसिट्स मैं डिस्कस कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। It means not only for standard 12 students, for higher class students, those students basically it means pursue their career in economics, it is very important one for them. Clear? Then next चलेंगे फिस्कल डेफिसिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट को क्या कहा जाता है ना, बेसिकली कैसे हम फिस्कल डेफिसिट को कैलकुलेट करेंगे। जनरली फिस्कल डेफिसिट इज ओवरऑल बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ड्यूरिंग ए फिस्कल ईयर। जो फिस्कल ईयर में गवर्नमेंट को जो ओवरऑल बोरोइंग गवर्नमेंट जो करता है, ओके, पूरा फिस्कल ईयर में, फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट जितना बोरो करता है, वही फिस्कल डेफिसिट है। थोड़ा कैलकुलेशन हम देखेंगे। इट मीन्स इट इज एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसिप्ट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। हमको टोटल एक्सपेंडिचर लेना है। टोटल एक्सपेंडिचर इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। टोटल रिसिप्ट्स लेना है, कैपिटल रिसिप्ट्स, रेवेन्यू रिसिप्ट्स, मगर कैपिटल रिसिप्ट्स में बोरोइंग्स को हम एक्सक्लूड कर देंगे, क्योंकि कैपिटल रिसिप्ट्स में 3 सोर्सेस है। एक है बोरोइंग्स, एक है रिकवरी ऑफ लोन्स, एक है डिसइन्वेस्टमेंट। तो यहां पर बोरोइंग्स को हम नहीं लेंगे, रिकवरीज ऑफ लोन्स को लेंगे और डिसइन्वेस्टमेंट को लेंगे। किसमें? कैपिटल रिसिप्ट्स में। और रेवेन्यू रिसिप्ट्स जो
जो टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू इसको लेंगे। तो में जो हमारा जो कैलकुलेशन होता है, इट इज एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसिप्ट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। कैपिटल रिसिप्ट में जो 3 प्रकार का सोर्सेस इंपोर्टेंट होता है, बोरोइंग्स, डिसइन्वेस्टमेंट एंड रिकवरीज ऑफ लोन्स, उससे बोरोइंग्स को हम नहीं लेंगे। ओके, तो टोटल एक्सपेंडिचर तो यहां पर मैं लिख दिया, इट मीन्स उसके बाद मैं फॉर्मूला बताऊंगा। फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल बोरोइंग्स ऑफ द गवर्नमेंट। इट इज टोटल बोरोइंग्स ऑफ द गवर्नमेंट। हमको कैसे पता चलेगा ना, व्हेन इट मीन्स एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसिप्ट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, ओके, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स, इट इज रेवेन्यू रिसिप्ट्स प्लस कैपिटल रिसिप्ट्स इंक्लूडिंग रिकवरीज ऑफ लोन्स एंड डिसइन्वेस्टमेंट। बोरोइंग्स को, जो कैपिटल रिसिप्ट का एक पार्ट है बोरोइंग्स को नहीं लेंगे। तो ये जो डेफिसिट आएगा, वो डेफिसिट को हम कैसे मीट करेंगे ना, इट मींस बोरो फंड्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस टू मीट दिस डेफिसिट। सो फिस्कल अल्टरनेट नेम ऑफ फिस्कल डेफिसिट इज, इट इज टोटल बोरोइंग ऑफ द गवर्नमेंट ड्यूरिंग ए फिस्कल ईयर। इट इज इक्वल टू टोटल बोरोइंग्स ऑफ द गवर्नमेंट ड्यूरिंग ए फिस्कल ईयर। ये जो टोटल बोरोइंग्स होता है वो एस्टिमेटेड होता है, क्योंकि गवर्नमेंट एस्टिमेट करता है और वो फिर रिवाइज होता है। और जो फिस्कल डेफिसिट आता है वो एक्चुअली परसेंटेज में आता है। जैसे इस बार 2020-21 बजट में गवर्नमेंट डिक्लेयर किया है कि फिस्कल डेफिसिट 3.4% होगा। तो 3.4% मीन्स 3.4% ऑफ जीडीपी, 3.4% ऑफ जीडीपी, जीडीपी ऑफ 2020-21। सो 3.4% ऑफ जीडीपी बोरो बाय द गवर्नमेंट टू मीट द डेफिसिट। ये एस्टिमेटेड है। एक्चुअल कब होगा ना, जब रिवाइज होगा एट द एंड ऑफ द ईयर, अगेन इट वुड बी रिवाइज्ड। Okay, then the government actually will consider the it means revised deficit and again estimate it for next year budget. Clear? तो often it is expressed as percentage of GDP. तो यहाँ पर फॉर्मूला में लिख दिया, देखो, फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल एक्सपेंडिचर, जस्ट नेक्स्ट सेंटेंस देखो, फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, इट इज टोटल एक्सपेंडिचर, माइनस टोटल रिसिप्ट्स में क्या आएगा, रेवेन्यू रिसिप्ट्स प्लस कैपिटल रिसिप्ट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। तो कैपिटल रिसिप्ट्स में एक्चुअली 3 सोर्सेस, फ्रॉम 3 सोर्सेस द गवर्नमेंट रिसीव कैपिटल रिसिप्ट, बोरोइंग्स, डिसइन्वेस्टमेंट, रिकवरीज ऑफ लोन्स। बोरोइंग्स को नहीं लेना है, तो कैपिटल रिसिप्ट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, ये फॉर्मूला है फिस्कल डेफिसिट का। तो फिस्कल डेफिसिट का अल्टरनेटिवली हाउ कैन वी एक्सप्रेस फिस्कल डेफिसिट ना, इट इज द ओवरऑल बोरोइंग्स ऑफ द गवर्नमेंट ड्यूरिंग ए फिस्कल ईयर। गवर्नमेंट फिस्कल ईयर में जितना बोरो करता है डेफिसिट को मीट करने के लिए, उसको ही फिस्कल डेफिसिट कहा जाता है। क्लियर? देन फिस्कल डेफिसिट इज ए मेजर ऑफ हाउ मच द गवर्नमेंट नीड्स टू बोरो फ्रॉम द मार्केट टू मीट इट्स एक्सपेंडिचर व्हेन इट्स रिसोर्सेस आर इनएडिक्वेट। तो ये फिस्कल डेफिसिट क्या मेजर होता है कि हाउ मच द गवर्नमेंट नीड्स टू बोरो फ्रॉम द मार्केट टू मीट इट्स एक्सपेंडिचर व्हेन इट्स रिसोर्सेस आर इनएडिक्वेट। क्योंकि यहाँ पर जो एक्सपेंडिचर है वो एक्सेस हो गया, जितना रिसिप्ट्स हुआ, जितना ओनली टोटल रिसिप्ट्स हम बोरोइंग्स को एक्सक्लूड करेंगे, अदर रिसिप्ट्स लेंगे। अदर रिसिप्ट्स क्या हुआ, रिकवरीज ऑफ लोन्स, डिसइन्वेस्टमेंट। कैपिटल रिसिप्ट का अदर रिसिप्ट्स हो गया। रेवेन्यू रिसिप्ट्स में टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू। ओके, ये जो रिसिप्ट्स हुआ उससे ज्यादा एक्सपेंडिचर हो गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। और ये जो डेफिसिट हुआ, वो डेफिसिट को गवर्नमेंट कैसे मीट करेगा ना, बोरोइंग्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस टू मीट दिस डेफिसिट। अच्छा, इंप्लीकेशंस देखेंगे। फर्स्ट इंप्लीकेशन है कि फिस्कल डेफिसिट इंडिकेट्स द टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट। बोरोइंग क्रिएट्स प्रॉब्लम ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन्स। मैं थोड़ा इसको क्लैरिफाई कर देता हूँ। फिस्कल डेफिसिट बेसिकली इट इज ओवरऑल बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। जब हम बोरो करेंगे, जब गवर्नमेंट बोरो करेगा, उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। जब इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर बेसिकली इट इज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो जब इंटरेस्ट ज्यादा गवर्नमेंट इंटरेस्ट देगा, तब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा होने से रेवेन्यू डेफिसिट आएगा। रेवेन्यू डेफिसिट जब आएगा, गवर्नमेंट फिर बोरो करके रेवेन्यू डेफिसिट को मीट करेगा। तो फिर जब गवर्नमेंट बोरो करेगा तो वो डेप्ट अमाउंट क्या होगा, क्यूमुलेटिव हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, गवर्नमेंट डेप्ट ट्रैप में फंस सकता है। तो फर्स्ट इंप्लीकेशन वही है। फिस्कल डेफिसिट इंडिकेट्स द टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट। बोरोइंग क्रिएट्स प्रॉब्लम ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन्स एंड ऑल्सो ऑफ रेगुलर इंटरेस्ट पेमेंट्स। तो बोरोइंग्स हम करेंगे मीन्स गवर्नमेंट मस्ट बी ओब्लाइज टू पे द प्रिंसिपल अमाउंट विथ इंटरेस्ट।
तो इंटरेस्ट पेमेंट्स इंक्रीज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हम जानते हैं जब इंटरेस्ट पेमेंट जो किस में आता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है ना, उसमें नाइदर क्रिएशन ऑफ एसेट्स नॉर रिडक्शन ऑफ लाइबिलिटीज, जो इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर ऑन इंटरेस्ट पेमेंट। तो इंटरेस्ट पेमेंट इंक्रीज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा तब रेवेन्यू डेफिसिट आ जाएगा एंड इट लीड्स टू रेवेन्यू डेफिसिट। जब रेवेन्यू डेफिसिट अभी मैं डिस्कस किया था इंप्लीकेशन में, जब रेवेन्यू डेफिसिट होगा देन अगेन गवर्नमेंट रिजोर्ट टू फर्दर बोरोइंग्स टू मीट द रेवेन्यू डेफिसिट। गवर्नमेंट फिर बोरो करेगा, उससे गवर्नमेंट का जो डेप्ट अमाउंट है वो क्यूमुलेटिव हो जाएगा। तो सो द कंट्री कट इन ए डेप्ट ट्रैप। डेप्ट ट्रैप क्या है ना, इट पुशेस द, एक जनरल डेफिनेशन में बता रहा हूँ, डेप्ट ट्रैप पुशेस द बोरोयर इनटू ए सिचुएशन फ्रॉम व्हिच रिकवरी इज पेनफुल वन। ऋण जाल है, ऐसा सिचुएशन को हम धकेल देगा जिससे निकलना मुश्किल हो जाता है। देन नेक्स्ट वन, गवर्नमेंट बोरोज फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मैं बार बार बताया व्हिच आर द डिफरेंट सोर्सेस टू मीट द फिस्कल डेफिसिट। फ्रॉम व्हिच सोर्सेस गवर्नमेंट बोरो फंड्स टू मीट द डेफिसिट। बेसिकली गवर्नमेंट इंटरनल सोर्सेस जो होता है, गवर्नमेंट बोरो फ्रॉम पब्लिक एंड कमर्शियल बैंक, ओके, इंटरनल सोर्सेस। एक्सटर्नल सोर्सेस में गवर्नमेंट बोरो फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट्स एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक वर्ल्ड बैंक एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये हो गया इंटरनल एक्सटर्नल। और एक डेफिसिट फाइनेंसिंग है, गवर्नमेंट बोरो फ्रॉम आरबीआई, तो उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा। तो गवर्नमेंट बोरोज फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। गवर्नमेंट जब बोरो करता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बेसिकली फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, देन दे इंटरफियर इन आवर पॉलिसीज बिकॉज दे आर द लेंडर्स। When they lend to our government, automatically they always persuade the Indian government, they always influence the Indian government to bring some policies which are favorable for them. So हमारा गवर्नमेंट उनसे बोरो करता है, मीन्स तो ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट जो पॉलिसीज लाएगा तो उनको फेवर में जाएगा। इधर वो इकोनॉमिक स्लावरी कहा जाता है। सो व्हेन गवर्नमेंट बोरोज फ्रॉम द फॉरेन कंट्रीज, इट इज एसोसिएटेड विथ इकोनॉमिक इंटरफियरेंस बाय द लेंडिंग कंट्रीज। वो इकोनॉमिक इंटरफियरेंस मीन्स वो गवर्नमेंट को प्रेशराइज करेंगे कि यू ब्रिंग सम पॉलिसीज विच आर फेवरेबल फॉर द मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस ऑफ बेसिकली फॉरेन कंट्रीज। जो फॉरेन गवर्नमेंट से, जैसे हम यूएसए गवर्नमेंट से बोरो कर रहे हैं, हमारा गवर्नमेंट यूएसए से बोरो कर रहा है, तो यूएसए गवर्नमेंट इंडिया गवर्नमेंट को प्रेशराइज करेगा कि ये सब पॉलिसी लाओ जो हमारा इन्वेस्टर्स को फेवरेबल होगा। तो ये सब इकोनॉमिक स्लावरी इस सिचुएशन को बोलते हैं। जब when the foreign governments they interfere, it means in our domestic policies, it is related to the economic slavery. Then next one, government borrow from RBI। मैं बार बार बताया, जब गवर्नमेंट आरबीआई से बोरो करता है तब गवर्नमेंट क्या करेगा ना, जब आरबीआई से बोरो करता है, आरबीआई प्रिंटिंग न्यू करेंसी नोट्स एंड लेंडिंग टू द गवर्नमेंट। सपोज गवर्नमेंट वांट टू बोरो 50 लाख रुपीज, तो गवर्नमेंट कीप 50 लाख, इट मीन्स गवर्नमेंट कीप सिक्योरिटी वर्थ ऑफ 50 लाख। गवर्नमेंट अभी 50 लाख बोरो करना चाहता है तो वो 50 लाख का सिक्योरिटी रखेगा आरबीआई में। देन आरबीआई प्रिंट न्यू करेंसी नोट्स एंड लेंडिंग टू द गवर्नमेंट। वो न्यू करेंसी नोट्स को प्रिंट करेगा और गवर्नमेंट को लेंडिंग करेगा। और देन गवर्नमेंट एक्सपेंस इट, देन मनी गोज टू द हैंड ऑफ द पब्लिक, लोगों के पास गया। ड्यू टू दिस मनी सप्लाई इंक्रीजेस, एग्रीगेट डिमांड इंक्रीजेस and then continuously price level increases, so it creates inflationary situation in the economy. तो inflationary situation अच्छा नहीं है because due to this actually the gap between rich and poor increases. The poor people basically in inflationary time when the price level is high one, automatically the poor people they cannot afford, they are not able to purchase adequate quantity of goods and services to fulfill their needs. Okay, ये deficit financing जो है गवर्नमेंट किससे बोरो करता है, आरबीआई से। देन ऑल्सो इट क्रिएट्स फाइनेंशियल बर्डन फॉर फ्यूचर जनरेशन, क्योंकि अभी गवर्नमेंट बोरो करेगा तो उसको फ्यूचर में पे करेगा। जब फ्यूचर में पे करेगा तब क्या करेगा ना, फ्यूचर जनरेशन के ऊपर ज्यादा टैक्स लगाएगा। बिकॉज नाउ गवर्नमेंट बोरो मीन्स इन फ्यूचर गवर्नमेंट वुड पे बैक इट, देन गवर्नमेंट इम्पोज मोर टैक्सेस ऑन द फ्यूचर जनरेशन। सो इट क्रिएट्स फाइनेंशियल बर्डन फॉर द फ्यूचर जनरेशन। और एक इम्प्लीकेशन है, फिस्कल डेफिसिट हैम्पर्स द फ्यूचर ग्रोथ ऑफ द कंट्री। Future growth of the country, basically in posturing time, government spend major part of the revenue receipts. Government use major part of the revenue receipt as interest payment. Government जो revenue receipt करेगा उसका ज्यादा भाग वो interest payment करेगा।
उसका कम भाग जो है वो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज में इन्वेस्ट होगा। तो ड्यू टू दिस डेफिनेटली इट हैम्पर्स द फ्यूचर ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। क्लियर? दीज आर द इम्प्लीकेशंस ऑफ फिस्कल डेफिसिट। तो सोर्सेस क्या है? मैं बार बार बताया, जो फिस्कल डेफिसिट होता है इट इज ओवरऑल बोरोइंग्स ऑफ द गवर्नमेंट ड्यूरिंग ए फिस्कल ईयर। तो गवर्नमेंट कहाँ कहाँ से बोरो करता है? फ्रॉम व्हिच सोर्सेस गवर्नमेंट बोरो फंड्स टू मीट द डेफिसिट? Okay, borrowing, first one, borrowing from internal sources, public and commercial banks. Banking chapter में बोला था, basically in open market operation on behalf of the government, RBI selling securities to the public and commercial banks. Okay, on behalf of the government के तरफ से RBI open market में securities public और commercial banks को बेचता है। तो ये एक borrowing है। तो जो फंड्स गवर्नमेंट रिसीव किया, तो ये एक बोरोइंग्स है। इट इज बेसिकली बोरो फ्रॉम पब्लिक एंड कमर्शियल बैंक्स एंड फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज इट इज फॉरेन गवर्नमेंट्स एंड फॉरेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक वर्ल्ड बैंक एंड IMF। इट इज वेरी क्लियर वन। देन सेकेंड वन, डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या है? व्हेन द गवर्नमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, द गवर्नमेंट मे बोरो फ्रॉम RBI अगेंस्ट सिक्योरिटीज टू मीट द फिस्कल डेफिसिट। जब गवर्नमेंट RBI से बोरो करता है अगेंस्ट सिक्योरिटीज में, or at that time RBI issue new currency notes and lending to the government. RBI printing new currency notes and lending to the government, and it creates inflationary situation in the economy. So एक question आता है, do you think that deficit financing creates inflationary situation in the economy? Yes, deficit financing creates inflationary situation in the economy. Okay, deficit financing means when the government borrow funds from RBI against securities. Then RBI printing new currency notes and lending to the government. Then government expends the money and money goes to the hand of the public. Due to this, money supply increases. Then it leads to increase in aggregate demand. When aggregate demand increases, then price level increases. Then it creates inflationary situation in the economy. तो यही जो है बेसिकली जो टू सोर्सेस है, एक बोरोइंग्स है और एक डेफिसिट फाइनेंसिंग है। एक्चुअली डेफिसिट फाइनेंसिंग के वजह से एक्चुअली जो फिस्कल डेफिसिट होता है वो इन्फ्लेशनरी सिचुएशन क्रिएट करता है। उसमें भी एक क्वेश्चन आता है, डू यू थिंक दैट फिस्कल डेफिसिट क्रिएट इन्फ्लेशनरी सिचुएशन इन द इकोनॉमी? ऑलवेज नहीं, नॉट ऑलवेज। व्हेन द इट मींस गवर्नमेंट it means meet the deficit through borrowings, then it does not create inflationary situation, because due to this actually money supply in the economy cannot be increased. So ये subsequent time में बताया। देखो, borrowings are considered a better source as they do not increase money supply in the economy. borrowings के वजह से मनी सप्लाई नहीं बढ़ता है। ओके, तो इससे इन्फ्लेशन सिचुएशन क्रिएट नहीं होता है। मगर जो डेफिसिट फाइनेंसिंग होता है, जब गवर्नमेंट RBI से बोरो करता है तब डेफिसिट को मीट करने के लिए, तब वो इन्फ्लेशनरी सिचुएशन क्रिएट करता है। तो एक क्वेश्चन आता है कि डू यू थिंक दैट फिस्कल डेफिसिट क्रिएट्स इन्फ्लेशनरी सिचुएशन इन द इकोनॉमी? आपको आंसर देना है नो, ऑलवेज फिस्कल डेफिसिट कैनॉट क्रिएट इन्फ्लेशनरी सिचुएशन इन द इकोनॉमी। Okay, when the government borrow from RBI against securities, at that time it creates inflationary situation in the economy. तो उसको थोड़ा एक्सप्लेन करना है, तो वही चीज में लिख दिया। देखो, on the other hand, deficit financing increases the money supply in the economy and creates inflationary situation in the economy. So fiscal deficit meeting through deficit financing creates inflationary situation in the economy. जो सोर्सेस है, टू सोर्सेस, एक है borrowings, सेकेंड है deficit financing. borrowings internal sources, external sources. Internal sources, government borrow from public and commercial banks. External sources, government borrow from foreign governments and international financial institutions. So borrowing से इन्फ्लेशन क्रिएट नहीं होता है। जो सेकेंड सोर्स है, जो डेफिसिट फाइनेंसिंग है, डेफिसिट फाइनेंसिंग मीन्स व्हेन गवर्नमेंट बोरो फ्रॉम RBI, वो डेफिसिट एक्चुअली इन्फ्लेशनरी सिचुएशन जनरेट होता है उससे। ठीक है, सिंपली मेजर्स टू रिड्यूस फिस्कल डेफिसिट वही है जो रेवेन्यू डेफिसिट में मेजर्स था, वही मेजर्स है, कोई अलग नहीं है। फर्स्ट वन, गवर्नमेंट रिड्यूस एक्स्ट्रावागेंट एंड वेस्टफुल एक्सपेंडिचर। ओके, गवर्नमेंट पब्लिक एक्सपेंडिचर को कम करना है और अदर साइड में रेवेन्यू को बढ़ाना है। तो सेम पॉइंट्स यू कंसिडर, ए ड्रास्टिक रिडक्शन इन वेस्टफुल एक्सपेंडिचर, दैट इज सब्सिडीज। मेजर्स टू इंक्रीज रेवेन्यू सेम है, जो रिमेडियल मेजर्स टू रिड्यूस रेवेन्यू डेफिसिट यहाँ पर वही है। इंक्रीज इन एग्जिस्टिंग टैक्स रेट एंड इम्पोज न्यू टैक्सेस, इंक्रीज इन नॉन टैक्स रिसिप्ट्स। Efforts should be made to increase income from PSEs, public sector undertakings or public sector enterprises. Same thing here. Tax evasion should be controlled.
एंड अनदर पॉइंट जस्ट आई हैव एडेड हियर, इट इज एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। तो वही है, जो रेवेन्यू डेफिसिट को रिड्यूस करने के लिए जो मेजर्स है वो फिजिकल डेफिसिट को मेजर करने के लिए सही वही ओके मेजर्स है, तो कोई अलग नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। थर्ड टाइप ऑफ डेफिसिट इट इज प्राइमरी डेफिसिट। अगेन फ्रेंड्स मैं अप्रोच करता हूँ, आप वीडियो को एंड तक देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। जो 3 टाइप्स ऑफ बजटरी डेफिसिट है, प्लीज़ लाइक मी, कमेंट मी एंड सब्सक्राइब मी। माय चैनल इज ASIT SIR ECOMANIA एंड पहले से ही मैं 2 वीडियो गवर्नमेंट बजट के ऊपर डाल चुका हूँ, सभी आप देखिए, ये 3rd वीडियो लास्ट वीडियो है। सो पूरा 3 वीडियो को अच्छे से देखिए, पूरा चैप्टर आपका समझ में आ जाएगा। तो अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फिर हम प्राइमरी डेफिसिट को जाएंगे। प्राइमरी डेफिसिट क्या है? व्हेन फ्रॉम फिजिकल डेफिसिट व्हेन इंटरेस्ट पेमेंट ऑन अर्लियर लोन्स, इंटरेस्ट पेमेंट ऑन पास्ट लोन्स, व्हेन इट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम फिजिकल डेफिसिट, देन जस्ट वी ऑब्टेन प्राइमरी डेफिसिट। ओके, तो प्राइमरी डेफिसिट का जो कैलकुलेशन है, जो फिजिकल डेफिसिट होता है, फिजिकल डेफिसिट मीन्स इट मीन्स ओवरऑल बोरोइंग्स ऑफ द गवर्नमेंट ड्यूरिंग ए फिजिकल ईयर। गवर्नमेंट जितना बोरो किया उससे क्या होगा, कितना इंटरेस्ट पेमेंट कर रहा है। सपोज एक एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे अभी गवर्नमेंट बोरो किया 4000 करोड़, उससे 1000 करोड़ वो इंटरेस्ट पेमेंट के लिए यूज करता है, तो प्राइमरी डेफिसिट कितना होगा? 3000 करोड़, क्योंकि गवर्नमेंट बोरो, टोटल बोरोइंग्स गवर्नमेंट का है 4000 करोड़। 4000 करोड़ से वो 1000 करोड़ इंटरेस्ट पेमेंट किया, तो प्राइमरी डेफिसिट क्या होगा? 3000 करोड़। तो फिजिकल डेफिसिट से इंटरेस्ट पेमेंट को हम माइनस करेंगे। तो बेसिकली ये भी बोल सकते हैं कि फिजिकल डेफिसिट माइनस प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू इंटरेस्ट पेमेंट। ओके, सेम थिंग है ना। फिजिकल डेफिसिट से इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस किया जाएगा, और आप फिजिकल डेफिसिट से प्राइमरी डेफिसिट को माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट पेमेंट मिलेगा। तो इंप्लीकेशंस देखो, बेसिकली प्राइमरी डेफिसिट इज डिफाइंड एज फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट ऑन प्रीवियस बोरोइंग्स। फिजिकल डेफिसिट से हम इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस करेंगे। Therefore, it indicates the amount of borrowings required to meet expenditure other than interest payments. तो प्राइमरी डेफिसिट क्या क्या पता चलता है कि हाउ मच अमाउंट ऑफ बोरोइंग्स इट मीन्स रिक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट टू मीट एक्सपेंडिचर अदर देन इंटरेस्ट पेमेंट्स। ओके, जो बोरोइंग्स होगा, जो गवर्नमेंट फिजिकल ईयर में बोरो करता है, उससे इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस करेगा, तब हमको प्राइमरी डेफिसिट मिलेगा। तो ये प्राइमरी डेफिसिट क्या इंडिकेट्स कर रहा है? इट इंडिकेट्स दैट amount of borrowings required by the government to meet the expenditure other than interest payments। और यहाँ पर ये जो डिफरेंस बिटवीन फिजिकल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट, सो तो मैं अभी बताया, जो फिजिकल डेफिसिट प्राइमरी डेफिसिट के डिफरेंस क्या है? इंटरेस्ट पेमेंट ऑन द बोरोइंग्स मेड इन द पास्ट। सो दो फिजिकल डेफिसिट प्राइमरी डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट माइनस प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू इंटरेस्ट पेमेंट। तो जब प्राइमरी डेफिसिट जीरो हो जाता है, प्राइमरी डेफिसिट कब जीरो होगा ना? व्हेन द फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल टू इंटरेस्ट पेमेंट। गवर्नमेंट जितना बोरो करेगा उतना को इंटरेस्ट पेमेंट कर देगा। ओके, गवर्नमेंट सपोज अभी गवर्नमेंट 4000 करोड़ बोरो किया और 4000 करोड़ को पूरा इंटरेस्ट पेमेंट कर दिया, तो प्राइमरी डेफिसिट क्या होगा? जीरो होगा। कि प्राइमरी डेफिसिट कब लो होता है? जब बोरोइंग्स का ज्यादा पार्ट इंटरेस्ट पेमेंट के लिए यूज किया जाता है, मोर पार्ट ऑफ द बोरोइंग्स यूज्ड फॉर इंटरेस्ट पेमेंट, तब प्राइमरी डेफिसिट लो हो जाता है। सो ए लो और जीरो प्राइमरी डेफिसिट इंडिकेट्स दैट इंटरेस्ट कमिटमेंट्स हैव फोर्स्ड द गवर्नमेंट टू बोरो। जब प्राइमरी डेफिसिट कम होगा कि प्राइमरी डेफिसिट जीरो होगा, प्राइमरी डेफिसिट जीरो मीन्स फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल टू इंटरेस्ट पेमेंट। इट मीन्स गवर्नमेंट बोरो फंड्स एंड यूज इट फॉर इंटरेस्ट पेमेंट। और लो प्राइमरी डेफिसिट मीन्स इट मीन्स मेजर पार्ट ऑफ द मोर पार्ट ऑफ द बोरोइंग्स यूज्ड फॉर इंटरेस्ट पेमेंट। इससे पता चलता है एक्चुअली। सो ये लो और जीरो प्राइमरी डेफिसिट इंडिकेट्स दैट, क्या इंडिकेट कर रहा है ना? ओनली इंटरेस्ट कमिटमेंट्स हैव फोर्स द गवर्नमेंट टू बोरो। जो गवर्नमेंट इंटरेस्ट कमिटमेंट किया है, जो कमिटमेंट किया है कि इंटरेस्ट पेमेंट करने के लिए, तो वो वही सिचुएशन गवर्नमेंट को फोर्स करता है बोरो करने के लिए। तो मेजर्स टू रिड्यूस प्राइमरी डेफिसिट, कैसे हम प्राइमरी डेफिसिट्स को कम करेंगे ना? प्राइमरी डेफिसिट इंडिकेट्स बोरोइंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट to meet deficit other than the interest payments. Therefore, efforts should be made to reduce fiscal deficit. हम जो प्राइमरी डेफिसिट जानते हैं, प्राइमरी डेफिसिट इंडिकेट्स दैट बोरोइंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट टू मीट डेफिसिट अदर देन द इंटरेस्ट पेमेंट। इंटरेस्ट पेमेंट जो गवर्नमेंट जितना बोरो किया उससे इंटरेस्ट पेमेंट को हम माइनस कर देते हैं, हमको प्राइमरी डेफिसिट प्राप्त होता है।
ओके, तो इंटरेस्ट पेमेंट के अलावा जो गवर्नमेंट जो बोरो करता है उसी को हम प्राइमरी डेफिसिट बोलते हैं। तब हमको क्या करना है, यहाँ पर फिस्कल डेफिसिट को कम करना है। एफर्ट्स शुड बी मेड बाय द गवर्नमेंट टू रिड्यूस फिस्कल डेफिसिट। जब ऑटोमेटिकली फिस्कल डेफिसिट कम हो जाएगा, प्राइमरी डेफिसिट कम हो जाएगा। तो टू रिड्यूस फिस्कल डेफिसिट, अच्छा फिस्कल डेफिसिट को रिड्यूस करने के लिए हमको इंटरेस्ट पेमेंट जो है उसको कम करना पड़ेगा। तो टू रिड्यूस फिस्कल डेफिसिट, इंटरेस्ट पेमेंट्स शुड बी रिड्यूस्ड थ्रू रीपेमेंट ऑफ लोन्स आज अर्ली एज पॉसिबल। हम बोरो करेंगे और जितना जल्दी उसको पेमेंट गवर्नमेंट कर देगा। गवर्नमेंट बोरो करेगा और as soon as possible गवर्नमेंट पे बैक द लोन अमाउंट। सो इससे क्या होगा ना, इंटरेस्ट पेमेंट फ्यूचर में गवर्नमेंट ज़्यादा इंटरेस्ट पेमेंट नहीं देगा, उसके वजह से ऑटोमेटिकली फिस्कल डेफिसिट कम हो जाएगा। और फिस्कल डेफिसिट जब कम होगा, ऑटोमेटिकली प्राइमरी डेफिसिट कम होगा। ठीक है, और थोड़ा डिफरेंस बता दिया, डिफरेंस बिटवीन फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। फिस्कल डेफिसिट इट शोज टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट पेमेंट। जो फिस्कल डेफिसिट होता है, जो टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट्स जो गवर्नमेंट टोटल बोरो करता है, उसमें इंटरेस्ट पेमेंट इंक्लूड है। उसका डेफिनेशन फिस्कल डेफिसिट, इट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल रिसिप्ट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। अब जानते हो डेफिनेशन फिस्कल डेफिसिट का। और ये सिंबलिकली फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। प्राइमरी डेफिसिट इट इंडिकेट्स टोटल बोरोइंग्स रिक्वायरमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट। जो गवर्नमेंट का बोरोइंग रिक्वायरमेंट है उससे इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस किया जाएगा। इट इंडिकेट्स द टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट। प्राइमरी इट शोज द डिफरेंस बिटवीन फिस्कल डेफिसिट एंड इंटरेस्ट पेमेंट। तो वही फॉर्मूला, प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट ऑन अर्लियर लोन्स। तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी डेफिसिट इज द रूट कॉज ऑफ फिस्कल डेफिसिट। हम यही बोलते हैं कि प्राइमरी डेफिसिट रूट कॉज होता है फिस्कल डेफिसिट का। मैं बार बार बताया कि जब फिस्कल डेफिसिट कम हो जाएगा, प्राइमरी डेफिसिट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। ठीक है, तो फिस्कल डेफिसिट कब कम होगा ना, जब इंटरेस्ट पेमेंट कम हो जाएगा। when the government as soon as possible when the government pay back the loan amount, then automatically it means interest payment in future, it means this burden would be reduced for the government. So due to this fiscal deficit is reduced and again primary deficit must be reduced. So same answer in this case, answer is same as measures to reduce primary deficit. जो प्राइमरी डेफिसिट को रिड्यूस करने के लिए जो मेजर्स लिखा, वही मेजर्स को यहाँ पर लिखना है। 2 पॉइंट्स में लिखा वहाँ पर, हाउ टू रिड्यूस प्राइमरी डेफिसिट। क्लियर, प्राइमरी वहाँ पर 2 पॉइंट्स बताया। जैसे एक फर्स्ट पॉइंट था कि जो प्राइमरी डेफिसिट होता है, इट इंडिकेट्स दैट बोरोइंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट अदर देन इंटरेस्ट पेमेंट्स। ओके, सो प्राइमरी डेफिसिट इज रिड्यूस्ड व्हेन फिस्कल डेफिसिट इज रिड्यूस्ड। जब फिस्कल डेफिसिट कम होगा, ऑटोमेटिकली प्राइमरी डेफिसिट कम होगा। ओके, व्हेन फिस्कल डेफिसिट इज रिड्यूस्ड, नाउ व्हेन इंटरेस्ट पेमेंट इज रिड्यूस्ड। Okay, when interest payment is reduced, then fiscal deficit is reduced, and then primary deficit is also reduced. So when the government pay back the loan as soon as possible, or it means as early as possible, then automatically it means the burden of interest payment must be reduced for the government. Due to this fiscal deficit must be reduced. It means borrowing requirements of the government must be reduced, and due to this primary deficit is also reduced. क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज जीरो प्राइमरी डेफिसिट मीन। जीरो प्राइमरी डेफिसिट में बताया कब प्राइमरी डेफिसिट कब जीरो होता है ना, जब फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू इंटरेस्ट पेमेंट। वही चीज लिखा, जितना गवर्नमेंट बोरो करेगा उसको इंटरेस्ट पेमेंट कर देगा। इट मीन्स गवर्नमेंट क्यों बोरो करता है ना, गवर्नमेंट इसीलिए बोरो करता है कि इंटरेस्ट पेमेंट करने के लिए। इट मीन्स गवर्नमेंट हैज टू रिजोर्ट टू बोरोइंग ओनली टू फुलफिल इट्स अर्लियर कमिटमेंट्स ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट्स। क्योंकि जीरो प्राइमरी डेफिसिट मीन्स गवर्नमेंट जो ओवरऑल बोरोइंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट टू मीट द इंटरेस्ट पेमेंट ऑन अर्लियर लोन्स। ओके, इट मीन्स द इंटरेस्ट पेमेंट एक्चुअली फोर्स द गवर्नमेंट टू बोरो फंड्स। इंटरेस्ट कमिटमेंट एक्चुअली फोर्स द गवर्नमेंट टू मीट द it means interest commitment actually force the government to borrow funds. Okay, so it is not, ये एक अच्छा है जब गवर्नमेंट it means to fulfill the interest commitment actually borrow funds,
इट मीन्स टू पे द इंटरेस्ट पेमेंट, ये फिजिकल डिसिप्लिन का सिंबल है. इट इज अ साइन ऑफ फिजिकल डिसिप्लिन और फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट. क्योंकि गवर्नमेंट को इंटरेस्ट पेमेंट करना है टाइमली, तो इसलिए गवर्नमेंट बोरो करके इंटरेस्ट पेमेंट करता है और उसका जो कमिटमेंट है उसको फुलफिल करता है. पर कभी कभी जब हाई प्राइमरी डेफिसिट हो जाता है, व्हेन प्राइमरी डेफिसिट इज हाई वन, इट मीन्स जो गवर्नमेंट बोरो करता है उसका कुछ पार्ट वो इंटरेस्ट पेमेंट करता है और जो अदर पार्ट होता है उसको गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करता है. तो वो फिजिकल इनडिसिप्लिन का एक साइन होता है. तो हाई प्राइमरी डेफिसिट ऑन द अदर हैंड रिफ्लेक्ट्स फिजिकल इरेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट. क्योंकि प्राइमरी डेफिसिट आपको मालूम है इंटरेस्ट पेमेंट जो ओवरऑल, इट मीन्स इंटरेस्ट पेमेंट शुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द ओवरऑल बोरोइंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट. हम इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस करेंगे टोटल बोरोइंग से और जो होगा उसको फिर गवर्नमेंट खर्च करेगा. Okay, it means government, it means borrow funds also other than it means interest payments. So high primary deficit on the other hand reflects fiscal irresponsibility of the government. It means government borrow funds to meet the expenditure other than the payment of interest obligations. वही गवर्नमेंट कुछ फंड्स बोरो करता है टू मीट द एक्सपेंडिचर अदर देन द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑब्लिगेशंस, वही प्राइमरी डेफिसिट है. तो प्राइमरी डेफिसिट ज्यादा होगा मीन्स गवर्नमेंट क्या करता है, जो ओवरऑल बोरो किया उसका कुछ पार्ट वो इंटरेस्ट पेमेंट किया और ज्यादा पार्ट वो एक्सपेंडिचर किया. इन सम केसेस गवर्नमेंट इनकर एक्सपेंडिचर ऑन गवर्नमेंट इनकर एक्सपेंडिचर ऑफ बोरोड फंड्स अनप्रोडक्टिवली. कभी कभी गवर्नमेंट अनप्रोडक्टिवली इट मीन्स बोरोड फंड्स को यूज करता है. सो इट क्रिएट्स मोर फाइनेंशियल बर्डन ऑन द गवर्नमेंट. ओके, वही जब प्राइमरी डेफिसिट ज्यादा होता है तब इट इज द फिजिकल इरेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट. इट इज अ साइन ऑफ फिजिकल इरेस्पॉन्सिबिलिटी because government borrow funds to meet the expenditure other than the interest obligations. गवर्नमेंट क्या करता है, जो जितना टोटल बोरो किया, सपोज अभी 4000 गवर्नमेंट बोरो किया, उसका 1000 करोड़ वो इंटरेस्ट पेमेंट किया और कितना बचा 3000 करोड़. 3000 करोड़ को गवर्नमेंट क्या करेगा, उसको खर्च करेगा और वो गवर्नमेंट उसको अनप्रोडक्टिवली खर्च कर दिया तो ऑटोमेटिकली इट वुड बी फाइनेंशियल बर्डन फॉर द गवर्नमेंट. तो कभी कभी जो जब प्राइमरी डेफिसिट ज्यादा हो जाता है तब वो basically it is a sign of fiscal irresponsibility of the government. Clear? Next one, can there be a fiscal deficit without revenue deficit? कभी कभी रेवेन्यू डेफिसिट नहीं होता है मगर फिजिकल डेफिसिट होगा, क्योंकि फिजिकल डेफिसिट टोटल रिसिप्ट्स एंड टोटल एक्सपेंडिचर के ऊपर निर्भर करता है. ओनली टोटल रिसिप्ट्स हम बोरोइंग्स को माइनस करेंगे. कभी कभी क्या है ना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू रिसिप्ट्स आर बैलेंस्ड वन, रेवेन्यू डेफिसिट नहीं है. कभी कभी रेवेन्यू डेफिसिट नहीं है मगर अदर साइड में कैपिटल डेफिसिट हो जाता है. कभी कभी क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर इज मोर देन कैपिटल रिसिप्ट्स. रेवेन्यू डेफिसिट नहीं है, रेवेन्यू डेफिसिट इज 0-1. इट मीन्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू रेवेन्यू रिसिप्ट्स और अदर साइड में कैपिटल एक्सपेंडिचर इज मोर देन कैपिटल रिसिप्ट्स. सो इन दिस केस कैपिटल डेफिसिट इज अराइज्ड. सो ड्यू टू कैपिटल डेफिसिट देन फिजिकल डेफिसिट इज अराइज्ड. सो कैन देयर बी ए फिजिकल डेफिसिट विदाउट रेवेन्यू डेफिसिट? यस, फिजिकल डेफिसिट इज कैलकुलेटेड बाय टेकिंग बोथ रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड कैपिटल रिसिप्ट्स and both capital expenditure and revenue expenditure, so that even when revenue receipts and revenue expenditure are in a state of balance means revenue deficit 0 है. सपोज जितना revenue receipts है उतना revenue expenditure हो रहा है तो revenue deficit नहीं है. so there could be excess of capital expenditure over capital receipts. other side में क्या है, capital deficit हो सकता है, capital expenditure is more than capital receipts. so due to this capital deficit is arised, so it causing fiscal deficit. क्योंकि fiscal deficit overall हम लेते हैं टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स. टोटल रिसिप्ट से हम बोरोइंग्स को माइनस कर देते हैं. तो कभी कभी रेवेन्यू डेफिसिट 0 है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इक्वल टू रेवेन्यू रिसिप्ट, बट इन अदर साइड कैपिटल डेफिसिट इज देयर, कैपिटल एक्सपेंडिचर इज मोर देन कैपिटल रिसिप्ट्स, सो इट कॉजेस फिजिकल डेफिसिट. इसलिए गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है, बोरो करना पड़ता है टू मीट द एक्सेस एक्सपेंडिचर. ओके, और एक बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिकल डिसिप्लिन के बारे में थोड़ा हम डिस्कस करेंगे. बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो उसको देखेंगे कब क्या फिजिकल डिसिप्लिन है और क्या फिजिकल इनडिसिप्लिन है. व्हाट हैपेंस व्हेन फिजिकल डिसिप्लिन इज नॉट देयर इन द इकोनॉमी. सो बेसिकली फिजिकल डिसिप्लिन क्या है, इट रिफर्स टू ए स्टेट ऑफ एन आइडियल बैलेंस बिटवीन रेवेन्यूज एंड एक्सपेंडिचर्स ऑफ द गवर्नमेंट. जब रेवेन्यू जो टोटल गवर्नमेंट का रेवेन्यूज है और एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट है जो बैलेंस होगा तब उसको फिजिकल डिसिप्लिन कहा जाता है. इट कॉल्स फॉर ए नेसेसरी चेक ऑन द एक्सपेंडिचर इन व्यू ऑफ द लिमिटेड रेवेन्यूज ऑफ द गवर्नमेंट. जब गवर्नमेंट रेवेन्यू को देखकर खर्च करेगा
ओके, रेवेन्यू को देख कर वो क्या करेगा, एक्सपेंडिचर करेगा, वो फिस्कल डिसिप्लिन है। तो इट रिफर्स टू एन आइडियल बैलेंस बिटवीन रेवेन्यूज एंड एक्सपेंडिचर्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो बेसिकली गवर्नमेंट इनकर्स एक्सपेंडिचर अकॉर्डिंग टू द लिमिटेड रेवेन्यू रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट। इफ फिस्कल डिसिप्लिन इज नॉट मेंटेन, जब फिस्कल, कब फिस्कल डिसिप्लिन नहीं आता है हम देखेंगे। इफ फिस्कल डिसिप्लिन इज नॉट मेंटेन, द गैप बिटवीन एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू स्टार्ट्स वाइडनिंग। ओके, एक्सपेंडिचर रेवेन्यू से ज़्यादा हो जाता है। जब एक्सपेंडिचर रेवेन्यू से ज़्यादा हो जाएगा तब क्या होगा ना, फिस्कल डिसिप्लिन इज नॉट मेंटेन। अच्छा, तब क्या करेगा गवर्नमेंट, ये जो एक्सेस एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए गवर्नमेंट बोरो करेगा। दिस कजेस से राइज इन गवर्नमेंट बोरोइंग। सो बोरोइंग फ्रॉम द आरबीआई ऑफन कजेस, तो गवर्नमेंट सपोज आरबीआई से बोरो करता है तो इट इंक्रीजेस इन्फ्लेशनरी सिचुएशन इन द इकोनॉमी। हम जानते हैं जब गवर्नमेंट आरबीआई से बोरो करेगा देन इट क्रिएट्स और इट जनरेट्स इन्फ्लेशनरी सिचुएशन इन द इकोनॉमी। जब इन्फ्लेशनरी स्पाइरल आएगा तब क्या होगा ना, जो वर्कर्स है वो ज़्यादा वेजेस डिमांड करेंगे। ओके, जब इन्फ्लेशनरी सिचुएशन आएगा, जब प्राइस लेवल बढ़ेगा, तब ऑटोमेटिकली व्हेन प्राइस लेवल इंक्रीजेस देन डेफिनेटली वर्कर्स दे डिमांड मोर वेजेस। ओके, सो देन inflation generates a vicious cycle in which higher wages, so automatically owing to the higher cost of living, when price level increases definitely cost of living would be high one for the workers, so they demand more wages. जब वो ज़्यादा वेजेस डिमांड करेंगे ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगा। जब प्रोड्यूसर्स एंड इन्वेस्टर्स दे पे मोर वेजेस टू द वर्कर्स देन ऑटोमेटिकली देयर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीजेस। सो इट मीन्स हाई प्रोडक्शन कॉस्ट स्टार्ट चेंजिंग टू ईच अदर। सो इट मीन्स वेजेस एंड प्रोडक्शन कॉस्ट चेंजिंग टू ईच अदर, ये होता रहेगा। ओके, जब ऑटोमेटिकली जब इन्फ्लेशनरी सिचुएशन आएगा, व्हेन इन्फ्लेशनरी सिचुएशन जनरेट्स इन द इकोनॉमी देन वर्कर्स डिमांड मोर वेजेस। When the producers and investors pay more wages, then their cost of production increases. Then again, when their cost of production increases, then they charge more prices. Okay, again, inflationary situation is more acute one. Then again, workers demand more wages to maintain the normal standard of living. तो ये होता रहेगा. Okay, cost of production and hike of wages changing to each other. तो फाइनली एक सिचुएशन ऐसे आ जाएगा हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन बेसिकली बोलते हैं कि मंथली व्हेन द प्राइस लेवल इंक्रीजेस बाय अराउंड 30%, मंथली प्राइस लेवल 30% बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा दर से मंथली। बेसिकली हमारा जो इन्फ्लेशन होता है हम ईयरली हम मेजर करते हैं, मगर हाइपर इन्फ्लेशन मंथली हम मेजर करेंगे। व्हेन प्राइस लेवल इंक्रीजेस बाय अराउंड 30% मंथली, तो जब हाइपर इन्फ्लेशन सिचुएशन आएगा देन डेफिनेटली डिस्टेबलाइजेस द इकोनॉमी। ड्यू टू हाइपर इन्फ्लेशन जब प्राइस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली एग्रीगेट डिमांड डिक्रीजेस एंड हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हर्टिंग द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट। ऑटोमेटिकली एक साइड में एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगा, अदर साइड में ज़्यादा प्रोडक्शन कॉस्ट होने से ऑटोमेटिकली प्रोड्यूसर्स एंड इन्वेस्टर्स दे रिड्यूस इन्वेस्टमेंट, वो इन्वेस्टमेंट को कम कर देंगे। जब इन्वेस्टमेंट कम होगा तब अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगा, आउटपुट लेवल कम होगा, फिर इनकम लेवल कम होगा, देन इकोनॉमी इज लीडिंग टुवर्ड्स स्टेट ऑफ रिसेशन। ओके, सो ये क्वेश्चन आता है, व्हाट हैपेंस इफ फिस्कल डिसिप्लिन इज नॉट मेंटेन इन द इकोनॉमी। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिस्कल डिसिप्लिन में बताए आइडियल बैलेंस बिटवीन रेवेन्यूज एंड एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट इनकर एक्सपेंडिचर अकॉर्डिंग टू द रेवेन्यू रिसिप्ट्स। ऑलवेज ईच एंड एवरी टाइम गवर्नमेंट कंट्रोल एक्सपेंडिचर इट मीन्स अकॉर्डिंग टू द लिमिटेड रेवेन्यू रिसिप्ट्स। अदरवाइज क्या होगा, कभी कभी एक्सपेंडिचर रेवेन्यू से ज़्यादा हो जाएगा, इट डिस्टेबलाइजेस द इकोनॉमी, हाइपर इन्फ्लेशन जनरेट होगा। हाइपर इन्फ्लेशन होने से प्राइस लेवल बहुत बढ़ जाएगा, एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगा। अदर साइड में जो प्रोड्यूसर्स एंड इन्वेस्टर्स दे बियर मोर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली वो इन्वेस्टमेंट कम कर देंगे। इन्वेस्टमेंट कम होने से अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगा। ओके, आउटपुट लेवल कम हो जाएगा, इनकम लेवल कम होगा, देन इकोनॉमी इज ड्राइवन इनटू स्टेट ऑफ रिसेशन। और एक प्रॉब्लम बताया, जैसे आप रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट निकालेंगे, ये सब दिया है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिया है, बोरोइंग्स दिया है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स दिया है, इंटरेस्ट पेमेंट क्या है ना 30% ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट। फर्स्ट रेवेन्यू डेफिसिट बहुत ईजी है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट, क्लियरली डायरेक्टली दिया है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्वेश्चन में दिया है 45,000 करोड़, रेवेन्यू रिसिप्ट 35,000 करोड़, रेवेन्यू डेफिसिट 10,000 करोड़। फिस्कल डेफिसिट आपको निकालना, फिस्कल डेफिसिट बोरोइंग्स दिया है, तो वी नो दैट alternatively fiscal deficit is called borrowing requirements of the government during a
फिजिकल ईयर गवर्नमेंट जितना बोरो करता है डेफिसिट को मीट करने के, बोरोइंग्स 12,000 करोड़ मीन्स इट इज फिजिकल डेफिसिट। तो फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल टू बोरोइंग्स, इट इज रुपीज 12,000 करोड़। तो प्राइमरी डेफिसिट क्या है ना, फिजिकल डेफिसिट से इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस किया जाएगा, मगर यहाँ पर इंटरेस्ट पेमेंट दिया है 30% ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट। जो रेवेन्यू डेफिसिट बीट ए में 10,000 करोड़ है, उसका 30% क्या होगा 3,000 करोड़। सो 3,000 करोड़ है इंटरेस्ट पेमेंट। क्लियर? तो प्राइमरी डेफिसिट इज फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, 12,000 करोड़ माइनस 30% ऑफ 10,000 करोड़, सो प्राइमरी डेफिसिट इज 9,000 करोड़। Okay, so please my friends watch the video till the end. It is the last part of my video related to the chapter budget. So आपको 3 videos देखना है, part 1, part 2, part 3, आपको पूरा complete information मिलेगा। तो जस्ट सब्सक्राइब माई चैनल ASIT SIR ECOMANIA, मुझे कमेंट कीजिए और मुझे लाइक कीजिए, फिर अच्छा वीडियो में लाऊंगा। सो आज ही इतना ही, थैंक यू।